Good morning, students. I hope you all are fine, you all are doing well. And I have received some messages from some students that you really liked the motivational video and that you want some more motivational videos because that is the need of the hour. Moreover, when you are sitting at home, you need to be motivated more. So today I have brought for you the topic that the students of your age need the most. Sometimes we don't know that what type of company we should keep. Sometimes we don't know with whom we should spend most of our time, what is good for us, what is not good for us. So today we are going to talk about this topic. I'll write something on the board and just think that what is it. What is it? Let me tell you, if you would have been in the class, I would have known the answers, but I know the probable answers. Somebody would say it's a W, somebody may say it's an M, somebody might think it as B, somebody might think it as I and M, and if there are any other possible answers, then you can write in the comment box, or whatever first thing you thought about this image, write honestly in the comment box that what was that, whether it was I, whether it was B, whether it was M, whether it is I am, whether it is IW, or it may be that somebody may say it's a McDonald's sign. So anything may come to your mind, but in order to remove all your doubts, I can write. So if I write A and C, then obviously it would have been very clear that what is inside is, what is in between is B. It's nothing else. It's not an M, it's not a W, it's not an I, M, it's nothing like that, but it's B. Now it is B. It's not possibly B, it is B. So how we come to know now without any doubts that it is B? Because we have A and B here, so something that A and C here and something that comes in the middle will be B. So with this I want to tell you that anybody is defined by the company he or she keeps. This is defined by what company it has. A, if it is in the company of A and C, it is possibly a B. So you people have to understand this. By this example, what I want to say is that whosoever is known by the company. There is a saying also, a person is known by the company he keeps. So if you start sitting with somebody who is very spoiled, who are not very good, who have different habits that anybody, a normal human being must not have, so if you live in their company, it will possibly be that you are also a person like them. If you live with somebody who is very good, see, one more thing I would like to tell you here, whenever you start feeling comfortable in somebody's company, that company is not very good for you. When you feel uncomfortable in somebody's company, now don't take me wrong otherwise, आप अपने से ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ बैठना शुरू करोगे, आप लोग को आपसे जिनको नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा है, आप जब उनके साथ बैठोगे, मे बी देयर आर सम टॉक्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज दे हैव मोर नॉलेज देन यू। आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा कि यार इनको तो सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता, एंड यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। लेकिन वो कंपनी आपके लिए अच्छी है क्योंकि आप उस कंपनी से कुछ सीखोगे। जिस कंपनी में बैठ के आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे कि ना तो मुझे कुछ आता है ना इसे कुछ आता है, या जितना मुझे आता है उतना ही इसे आता है, then you are never going to gain anything from that company. So in order to be successful, you have to be in a company that makes you a little uncomfortable, that from where you learn more and you know less. That company is always better for you. So this was and another thing is that you can learn about it from many things. अभी हमने पीछे एक पोम भी की थी, कीपिंग क्वाइट। हाँ, चलो एक तो कंपनी की बात हो गई। सेकेंड थिंग इज व्हाट वी कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम नेचर। अगर हम बात करें एक ईगल की लाइफ से आप क्या क्या सीख सकते हैं? देखिए कभी ईगल।
सोचा है कभी कितना लाइफ स्पैन होता होगा एक ईगल का, कितना कितने साल जीती होगी एक ईगल? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? एवर यू हैव रिसर्च अबाउट इट? एवर यू हैव थॉट ऑफ नोइंग अबाउट इट? एक ईगल बेसिकली तो उसकी एज 30 to 40 ईयर्स होती है, लेकिन कुछ ईगल ऐसी होती हैं जो 70 ईयर्स तक भी रहती हैं। 40 ईयर्स की एज तक वो ईगल बिल्कुल ठीक से रहती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके जो बीक है वो भी बहुत शार्प होती है, उसके जो ये पॉज होते हैं जिससे वो अपना प्रे को कैच करती है, दैट आर ऑल्सो वेरी शार्प। उसके जो पंख होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, यू नो दे आर वेरी बिग, कि वो इजीली अपने प्रे को जब कैच करती है तो उसको हाइड भी कर देती है। हाँ, सो ईगल 40 ईयर्स तक बहुत अच्छे से जीती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन 40 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है उस ईगल को पता है? उसकी जो बीक है वो ब्लंट हो जाती है। ठीक है, अगर उसने अपना प्रे कैच भी कर लिया, वैसे तो वो प्रे भी नहीं कैच कर पाती है, क्यों? क्योंकि उसके जो ये पॉज होते हैं जिनसे वो प्रे को कैच करती है, इवन दैट बिकम्स ब्लंट। ओके, और वो कैच नहीं कर पाती है इनसे। एंड फेदर्स भी उसके उतने हार्ड हो जाते हैं कि वो जिस तरीके से पहले उड़ पाती थी उतना नहीं उड़ पाती। इट बिकम्स वेरी स्लो। पहले वो बहुत स्विफ्ट होती थी एंड देन इट बिकम्स वेरी स्लो। 40 ईयर्स की एज तक वो जाती है तो उसका ये हाल हो जाता है दैट इट इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। प्रे भी नहीं कैच कर पाती है, उसको काट भी नहीं पाती है। प्रे कैच भी कर लेगी तो आखिर उसने उसको बीक से काटना है, वो बीक से उसको काट भी नहीं पाती। तो व्हाट इट डज, वो एक बहुत ऊंची सी एक चट्टान पे चली जाती है। ओके, कैसे भी बहुत धीरे धीरे तो उड़ती है, लेकिन एक ऊंची सी चट्टान पे जाके बैठ जाती है और उसे बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। इट गोज देयर, इट सिट्स देयर। फिर वो क्या करती है, अपनी जो बीक है उस बीक को उस पर्टिकुलर स्टोन पे इट स्टार्ट्स बीटिंग। बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, उस पर बीट करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। क्यों? ताकि उसकी वो जो बीक है वो टूट जाए। उससे उसको शी हैज टू गो थ्रू पेन ऑल्सो, शी ब्लीड्स ऑल्सो, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उसके पास दो रास्ते हैं आफ्टर 40 ईयर्स, इधर इट शुड डाई और इट शुड लिव अगेन लाइक इट वॉज लिविंग अर्लियर। सो इट गोज देयर, वो अपनी बीक को मारती, जैसे हमारे नेल्स होते हैं, अगर हमारा सपोज नेल टूट भी जाता है देन इट ग्रोज अगेन, वैसा ही उसका बीक भी होता है कि अगर उसकी बीक टूट भी जाती है तो बीक उसकी फिर से ग्रो हो जाती है। एंड सबसे पहले वो अपनी बीक का प्रहार करती है, बीक को मारती है, एंड द बीक ग्रोज। उसके बाद उसका जो निशाना होता है दैट आर इट्स पॉज, फिर वो अपने पॉज को मारती है, उसके पॉज भी फिर से ग्रो कर जाते हैं। तो ये 6-8 महीने का प्रोसेस होता है इवन। और फिर वो क्या करती है, जब उसकी बीक भी आ गई और उसके पॉज भी बहुत शार्प हो गए, तो वो फिर अपने फेदर्स को भी, जो जो फेदर्स बहुत हार्ड हो गए हैं, जो उसको उड़ने नहीं देते प्रॉपरली, वो उसको भी तोड़ देती है उससे। ओके, एंड देन इट ऑल्सो ग्रोज। सो एक नई ईगल बन गई आफ्टर 6-8 मंथ्स। कैसे? वो देखती अपनी और बर्ड्स को जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मर गए तो मर गए, तो ईगल उनसे क्या सीखती? लेकिन ईगल, व्हाट इज द जिस्ट? द जिस्ट इज दिस कि आप अच्छी कंपनी रखो, वो अच्छी कंपनी रखो जो आपके लिए अच्छी है। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे खराब कर रहे हैं या इनके साथ रह के आई कैन नॉट be successful, it is better to live alone than living with such people, and this is what eagle does. वो और बर्ड्स के जैसे बढ़ती नहीं है, वो और बर्ड्स के जैसे ये नहीं सोचती कि that I cannot relive again। अगर आपने phoenix के बारे में सोचा होगा तो ये this is something also related to the mythology of a phoenix। phoenix के बारे में I have already been telling many of my students कि वो अपने ही ashes से grow करती है। सो नेचर हमें भी बहुत कुछ सिखाता है अबाउट द कंपनीज दैट वी मस्ट कीप। तो हम नेचर से भी लर्न कर सकते हैं और हम अपने आसपास से भी लर्न कर सकते हैं। यू सी देयर इज अ ग्रुप जिसमें सब लोग बहुत फिट है। ओके, तो अगर 8 लोग हैं वो फिटनेस के लिए दे आर नोन, सो एवरीबडी विल बी रेडी फॉर द फिटनेस। उसमें से हार्डली ही कोई होगा जो फिट नहीं होगा। लेकिन देयर इज अ कंपनी जिसमें मीन्स एवरीबडी वेक्स अप लेट एंड ऑल, तो वो कंपनी कैसी रहेगी? उसमें इल हेल्थ, डिजीजेस, बैड थिंकिंग, एवरीथिंग वुड बी देयर। सो यू मस्ट ऑलवेज कीप द कंपनी दैट you see everybody is the best judge। हमें पता है कि मुझे पता है कि मेरे लिए कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी नहीं है। everybody knows somewhere inside that the company that I'm keeping is good for me or not, and we must
leave the bad company as soon as possible, and we must always live in the company that is good for us. So that was all for today's motivation. I'll come again with something. अच्छा, एक और एग्जांपल देना चाहूँगी मैं यहाँ पर. लास्ट टाइम भी मैंने एक माइथोलॉजी, अपने हिंदू माइथोलॉजी का एक एग्जांपल लिया था, एंड आई वुड लाइक टू give you one more example here, if it is related to the bad company as I'm talking about. रामायण. हाँ, मैंने फिर एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी सीन रामायण. अब तुम ये भी कह सकते हो कि मैम ने लगता है नई नई रामायण देखी है, तो यस आई हैव वॉच्ड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. सो रामायण में भी बैड कंपनी हमने देखी थी. हैव यू सीन द बैड कंपनी? रामायण में भी देखी हमने, महाभारत में भी देखी बैड कंपनी. रामायण में बैड कंपनी कैसे थी कि कई किसकी बात सुनती थी? मंथरा की बात सुनती थी. अब मंथरा की बात को उसने सुना, एंड शी हैज, how had she treated Lord Rama? Everybody knows about it. Had she been in good company, she might have not ruined the life of Lord Rama, at that time. So everything depends on the company that we keep. बाद में उसको realize भी हुआ, सब कुछ है, but she had already done what she was not supposed to do. So bad company का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है. अगर हम महाभारत में देखें कि किस तरीके से कौरव थे, और वो बैड कंपनी ही थी जिसकी वजह से वो ये सब करते थे. एंड हाउ वर द पांडवस. सो बैड कंपनी हमें कैसे रूइन करती है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं वो भी हमें देते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं, हमें आसपास के लोग भी सिखाते हैं. सो वी शुड ऑलवेज keep good company, because good company is that defines a person. So now I'll be sending you the online test. Be ready for it. Bye bye.